ارطغرل غازی سیزن 4 کے قسط نمبر 34 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں حلیمہ سلطان قائی قبیلے میں ارطغرل کے لیے بہت پریشان تھی کہ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی۔ اتنے میں حکیم ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب کی طرف سے خبر آئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارا جھنڈا قلعے میں لہرا دیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے مجھے ارطغرل صاحب نے قلعے میں بلایا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اتنے میں گندوز کہتا ہے ارطغرل صاحب ماریا کیسی ہے؟ میں اس کے بارے میں پریشان ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے ماریا کون ہے گندوز؟ پھر حلیمہ حکیم ارطغرل کو بتاتی ہے کہ ماریا قلعے میں رہتی ہے، اس نے گندوز کو آزاد کرانے میں مدد کی تھی۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے گندوز، میں قلعے جا کر اسے تلاش کروں گا۔ پھر حکیم ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کراجیسر قلعے میں آرس کے سپاہیوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران آرس بھی مردہ بن کر ان سپاہیوں میں موجود تھا۔ اس طرح آرس کو بھی مردہ سپاہی سمجھ کر گھوڑا گاڑی پر لاد دیا جاتا ہے اور پھر گھوڑا گاڑی روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ارطغرل قلعے کے مرکزی حال میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ قلعہ بہت سی دھوکے بازیوں، جالوں اور شر کا گھر رہا ہے۔ ان کے ظلم کا بدلہ صرف ان کے خون سے لیا جا سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہاں انصاف کی روشنی پھیلے گی۔ ارسس کہتا ہے اس فتح سے نہ صرف آپ نے نکایا کو ہلایا ہے بلکہ قسطنطنیہ کو بھی ہلا دیا ہے۔ پھر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کا کہو، جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اب اس قلعے کی تلاشی لو، دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیا پڑا ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں ادھر ادھر تلاشی لینے لگتے ہیں۔ اتنے میں بامسی کہتا ہے سردار یہاں ایک تالے والا صندوق پڑا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ادھر لے آؤ بامسی۔ پھر ترگت اور بامسی اسے اٹھا کر ارطغرل کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ارطغرل ترگت کو صندوق کھولنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ترگت کلاڑے کی مدد سے اس کا تالا توڑ دیتا ہے اور پھر صندوق کھول دیتا ہے۔ صندوق میں ارطغرل کی تلوار پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اور باقی سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے میری ہی تلوار سے مارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے خواب کو ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے۔ اب روایات کے مطابق میں اس تلوار کو اس کے تخت پر چلاؤں گا۔ دوسری طرف گھوڑا گاڑی پر لاشوں کو لے جایا جا رہا تھا۔ آرس بھی ان میں موجود تھا اور دل میں کہتا ہے یہ یہاں ختم نہیں ہوا ارطغرل، میں واپس آؤں گا، میں تم سے تمہاری جان اور اپنا قلعہ دوبارہ چھین لوں گا۔ دوسری طرف دمرل اندر آ کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ ہم نے آرس کی سپاہیوں کی لاشیں قلعے سے بھجوا دی ہے اور اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اپنے قبیلے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ارطغرل کہتا ہے یہ کامیابی ہمیں انہی شہیدوں کی وجہ سے ملی ہے، اللہ ان کی روحوں پر رحمت کرے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ پھر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے ہم نے قلعے کو فتح کر لیا ہے لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ سپاہیوں کو کہو کہ وہ ہوشیار رہے۔ نکایا سے بڑی فوج آنے سے پہلے بلیجک کا گورنر یہاں اپنی یونٹ بھیج سکتا ہے، کچھ سپاہی بلیجک سے آنے والے راستے پر تعینات کر دو۔ پھر ارطغرل ارسس کو کہتا ہے ممکن ہے کہ آرس قلعے سے نکل گیا ہو، آپ کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے ڈھونڈو، وہ بلیجک کے گورنر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ ارسس کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو ارطغرل صاحب، میں آرس کے سارے راستے جانتا ہوں، میں اس کی گردن اتار کر آپ کے پاس لاؤں گا۔ پھر ارطغرل گنگت کو کہتا ہے تم یہاں کے پادریوں کے پاس جا کر کہو کہ وہ اپنی مذہبی علامتیں یہاں سے لے جائے۔ دوسری طرف گھوڑا گاڑیوں پر لاشوں کو لے جایا جا رہا تھا، وہ جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ اتنے میں آرس ایک لاش کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے، یہ دیکھ کر گھوڑا گاڑیاں رک جاتی ہے۔ اتنے میں آرس حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح آرس کچھ سپاہیوں کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں ارسس بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک زخمی سپاہی ارسس کو بتاتا ہے کہ آرس بھاگ گیا ہے، وہ ان لاشوں میں چھپا ہوا تھا۔ ارسس کہتا ہے تم جا کر ارطغرل صاحب کو خبر دو، ہم آرس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر ارسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ پادری قلعے میں ارطغرل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک پادری کہتا ہے عیسائی لوگ اپنی عبادت اور مذہب کے بارے میں پریشان ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں کیا کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم کسی کے ایمان میں مداخلت نہیں کرتے پادری صاحب، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اب سے آپ میرے لوگ ہو۔ اللہ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے جب تک آپ دوسروں کو تنگ نہیں کریں گے آپ جیسے چاہے یہاں رہ سکتے ہیں۔ آپ گھنٹی بجا کر سب کو صحن میں اکٹھا کرے، میں ان سے ایک اہم بات کروں گا۔ پادری کہتا ہے شکریہ ارطغرل صاحب، پھر وہ اپنی مذہبی علامتیں اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آرس ایک گھوڑے پر بھاگ رہا تھا، ارسس اور کچھ سپاہی آرس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر آرس گھوڑے سے اتر آتا
लेता है और घोड़े को भगाकर एक जगह चुप जाता है। कुछ देर बाद अरसिज वहां पहुंचकर रुक जाता है और सिपाहियों को कहता है निशान चेक करो। एक सिपाही निशान देखने के बाद कहता है घोड़े के निशान इस तरफ जा रहे हैं। अरसिज कहता है ये रास्ता तो ब्लेजिक की तरफ जाता है। अर्तुगरुल साहब सही कह रहे थे, आरिस ब्लेजिक के गवर्नर से मदद मांगेगा, हमें उसे लाजमी रोकना होगा। फिर वो सब दोबारा आगे रवाना हो जाते हैं, जबकि आरिस उठकर एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग किले में पहुंच गया था। वो अर्तुगरुल और बाकी सबसे गले मिलता है और उन्हें मुबारकबाद देता है। इतने में कुछ सिपाही 3 संदूक उठाकर ले आते हैं और कहते हैं ये हमें किले के तहखाने से मिले हैं। फिर हकीम अर्तुग वो तीनों संदूक खोलने लगता है। इस तरह 2 संदूकों में सोने के सिक्के और दूसरी कीमती चीजें थी, जबकि एक संदूक में खत वगैरह पड़े हुए थे। अर्तुगरुल कहता है एक एक कागज को पढ़े अर्तुग साहब, मैं आरिस और अमीर सादतीन के दरमियान ताल्लुक का पता लगाना चाहता हूँ। मुझे एक मजबूत सबूत चाहिए जब मैं सुल्तान के पास जाऊंगा, और इस गनीमत का 5वां हिस्सा मैं सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा। कुछ सोने से हम एक शिफाखाना और छोटी सी मस्जिद तामीर करेंगे और बाकी सोना सब तुर्क कबीलों में बराबर तकसीम कर देंगे। इतने में हाइमा खातून वगैरह भी किले में पहुंच जाती है। हफ्सा कुछ जज्बाती हो जाती है। हाइमा खातून पूछती है तुम्हें क्या हुआ बेटी? हफ्सा कहती है मैं इस किले में पैदा हुई थी, मैंने यहाँ बहुत से दुख देखे है, मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया था। ये सुनकर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान उसे दिलासा देती है। इतने में गुंगुत आकर कहता है खुश आमदीद हाइमा वालदा, चले मैं आपको अर्तुगरुल साहब के पास ले चलूं। अंदर 2 सिपाही ताजिर निको को पकड़कर अर्तुगरुल के पास ले आते हैं। अर्तुगरुल उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं किले को हासिल कर लूंगा, मैंने तुम लोगों की हुक्मरानी यहाँ खत्म कर दी है, जल्द निकाया का शहनशाह भी ये देख लेगा। फिर अर्तुगरुल हकीम अर्तुग को कहता है खत लिखो अर्तुग साहब, उसमें लिखो शहनशाह दूकस, हमने तुम्हारे गवर्नर आरिस के सारे जाल तबाह कर दिए हैं, मैंने उस बुज़दिल से सुलह तोड़ने का हिसाब ले लिया है, अब कराजेसर किले में मेरी हुक्मरानी है, मैं जल्द तुम्हें आरिस का सर भी भेज दूंगा। अगर ब्लेजिक के गवर्नर ने कोई गलती की तो उसके साथ भी आरिस जैसा सलूक होगा, और ये जान ले कि हमारी फौज निकाया को भी लेने की ताकत रखती है। सल्जूक रियासत का हाकिम अला सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। इसके बाद अर्तुगरुल उस खत पर सल्जूक रियासत की मोहर लगा देता है। फिर अर्तुगरुल ताजिर निको को कहता है अब जाओ और निकाया में हर किसी को हमारी जीत की खबर सुनाओ। इस तरह ताजिर निको खत लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ आरिस जंगल में भाग रहा था। अरसिज अपने सिपाहियों के साथ गलत सिमत में जा रहा था। कराजेसर में गुंदुज सबको रास्ता बताते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने में मारिया भी वहाँ आ जाती है। गुंदुज उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर गुंदुज कहता है आप जिंदा हो मारिया, मैं आपके बारे में बहुत परेशान था, आपका जख्म कैसा है? मारिया कहती है अभी मैं ठीक हूँ गुंदुज। फिर हलीमा और हाइमा खातून भी मारिया का शुक्रिया अदा करती है कि उसने गुंदुज की मदद की थी। फिर बामसी उन सबको लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर में वो सब अर्तुगरुल के पास पहुंच जाते हैं और खुशी से एक दूसरे को मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। फिर अर्तुगरुल मारिया को कहता है आपको जिंदा देखकर मुझे खुशी हुई मारिया। मारिया कहती है आपने मेरे भाई का इंतकाम ले लिया और मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? अर्तुगरुल पूछता है भाई के अलावा भी आपका कोई रिश्तेदार है? मारिया कहती है नहीं, मेरा कोई नहीं है। अर्तुगरुल कहता है तो फिर हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अगर आप चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। फिर अर्तुगरुल हकीम अर्तुग से कहता है आप मारिया के जख्मों का ख्याल रखें अर्तुग साहब, ताकि ये जल्द सेहतयाब हो जाए। मारिया कहती है खुदा आपकी हिफाजत करे अर्तुगरुल साहब और ज्यादा ताकत अता फरमाए। फिर मारिया और हकीम अर्तुग बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरिस भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहां बहादुर के 3 सिपाही बैठे हुए थे। आरिस चुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। एक सिपाही कह रहा था भाइयों हमें अर्तुगरुल साहब को तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरा सिपाही कहता है हम उस आदमी को तस्लीम नहीं कर सकते जिसने हमारे सरदार बहादुर साहब को कत्ल किया था, हम उससे हिसाब लेंगे। ये सुनकर आरिस दिल में कहता है तो तुमने बहादुर को भी कत्ल कर दिया अर्तुगरुल, लानत है तुम पर। फिर आरिस खड़ा होकर उनके सामने आ जाता है। एक सिपाही कहता है ये कमांडर आरिस है। फिर वो उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह आरिस तीनों को मार देता है। फिर वो एक घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ किले के सहन में आसपास के आम लोग इकट्ठे हो चुके थे जिन्हें अर्तुगरुल ने बुलाया था। अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। आप ये जान ले कि अब से इस इलाके में जुल्म और खौफ की जगह इंसाफ आ चुका है। हम सब के साथ बराबर सलूक करेंगे। अब से हम सब अमन और सुकून से रहेंगे। आप यहाँ आजादी से अपने मजहब की पैरवी कर सकते हैं। इंसाफ, आजादी, अमन और इत्तेहाद हमारे कानून है। ये बातें सुनकर सब
सब लोग खुश हो जाते हैं और अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अंदर चला जाता है। हकीम अर्तुग मशवरा देता है कि अब हमें किले में एक मस्जिद और मदरसा भी तामीर करवाना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्तुग साहब, बामसी तुम ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाओ। फिर तुर्गुत कहता है, यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी फिक्र टैक्स की है सरदार, वो खौफजदा है कि कहीं आप उनसे ज्यादा टैक्स ना लो। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर हम ताजिरों से कम टैक्स लेंगे। अब्दुर्रहमान आप जाकर ताजिरों को आगाह करो कि हम उनसे कम टैक्स लेंगे। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, अर्तुग साहब आप सबसे पहले वो तमाम कागजात चेक करें जो हमें मिले थे। यकीनन कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो आरिस और अमीर सादतीन के दरमियान जुड़ी होगी। हर चीज को तफसील से चेक करें। मारिया को भी साथ ले जाए, वो आपको रूमी जुबान पढ़ने में मदद करेगी। दूसरी तरफ आरिस घोड़े पर कहीं रवाना हो गया था और यह इस केस का इख्तिताम हो जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के खूबसूरत वाक़ियात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 85 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। ज़रार बिन अलाज़ूर ने अपना वही कमाल दिखाया जिस पर वो रूमियों में मशहूर हो गए थे। उन्होंने अपनी खोद, जर्रा और अपनी कमीज भी उतार फेंकी और रूमियों पर टूट पड़े। रूमी सवार इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अपने नरगे में लिए हुए मुसलमान सवारों में से कई एक को शहीद और ज़्यादातर को शदीद जख्मी कर चुके थे। उनमें से जो बच गए थे उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आ जाने से नया हौसला मिला। रूमी खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़रार के सवारों के मुकाबले के लिए मुड़े तो पीछे से उन बच्चे कुचे सवारों ने उन पर हमला बोल दिया जो कुछ देर पहले तक उनके नरगे में आए हुए थे। मोरगा खुनरेज और तेज था। अब रूमी घेरे में आ गए थे। उनकी तादाद ज्यादा थी। वो सिकुड़ते थे तो उनके घोड़ों को खुलकर हरकत करने की जगह नहीं मिलती थी। मुसलमान सवारों ने उन्हें बुरी तरह काटा और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि रूमी सवार मारेके से निकल कर भागने लगे। आखिर वो अपनी बहुत सी लाशों और शदीद जख्मियों को पीछे छोड़कर भाग गए। उन मुसलमान सवारों का जानी नुकसान कम न था जो रूमियों के घेरे में लड़ते रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि मेले का सामान इकट्ठा किया जाए। उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को जख्मियों और लाशों को उठाने पर लगा दिया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी ये हालत थी कि उनके जिस्म पर कई जख्म आए थे और उनके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उन्हें उन जख्मियों की जैसे परवाह ही नहीं थी। जख्म खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। उनके जिस्म पर उस वक़्त तक इतने जख्म आ चुके थे कि मज़ीद जख्मों की जगह नहीं थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस दमश्क आए। वो जो माल गनीमत साथ लाए थे वो बहुत ज़्यादा और कीमती था। जख्मी होकर गिरने वाले और मरने वाले रूमियों की सैकड़ों घोड़े भी उनके साथ थे, मगर उस माल गनीमत के लिए बड़ी कीमती जानों की कीमत दी गई थी। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस जानी नुकसान पर बहुत अफसोस था। अलबत्ता उन्हें यह देखकर इत्मीनान हुआ कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिलाफ ये शक दूर कर दिया था कि माजूली की वजह से उनमें पहले वाली दिलचस्पी और जोश व खरोश नहीं रहा। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जिस्म जख्मी करा के ये साबित कर दिया था कि माजूली का उन पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए मदीना भेजा और इसके साथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरी तफसील भी लिखी कि उन्होंने क्या कार्रवाई की थी, इससे क्या सूरत हाल पैदा हुई और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कारनामा किया। मोरिख लिखते हैं कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेतहाशा तारीफ लिखी। हर महाज से और हर मैदान से रूमी पसपा हो रहे थे। रूमियों का शहनशाह हेरकल अंताकिया में था। इसके हाँ जो भी कासिद आता था वो एक ही जैसी खबर सुनाता था, उस किले पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया है, फला मैदान से भी अपनी फौज पसपा हो गई है, मुसलमान फला तरफ पेशकदमी कर गए हैं, हमारे फला शहर के लोगों ने मुसलमानों को जजिया देना कबूल कर लिया है। हेरकल के कानों में अब तक कोई नई बात पड़ी ही नहीं थी। नींद में भी वो यही खबरें सुनता था। उसके वजीर मशीर और सालार वगैरह अब उसके सामने कोई शिकस्त का पैगाम लेकर जाने से डरते थे, लेकिन उन्हें उसके सामने जाना पड़ता था और उसके साथ शिकस्त की बातें करनी और सुनने पड़ती थी। वो अंताकिया की एक शाम थी। अंताकिया की शामें हसीन हुआ करती थी, लेकिन उन्हें उसके सामने जाना पड़ता था और इसके साथ शिकस्त की बातें करनी और सुननी पड़ती थी। वो अंताकिया की एक शाम थी। अंताकिया की शामें हसीन हुआ करती थी। ये शहर सल्तनत रूमा का एक अहम और बारौनक शहर था। रूम के आला हुकाम, अमरा और वज़रा यहाँ रहते थे।
اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہیرکل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوج ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے اسالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں کہبتہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو کہبہ خانوں کی رونق بن جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائف میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجیں آتے تھے وہ زخمی ہوتی تھی، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہیرکل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہیرکل شاہی بگی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے جا رہے تھے۔ ان کے سوار ہیرکل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی جن کی انیاں اوپر کو تھی، اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جنڈی تھی۔ بگی کے پیچھے بھی 8-10 گھڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھی، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہیرکل کے راستے میں آ گئی۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگی کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہے۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہیرکل کی بگی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہیرکل نے گرج جیسی آواز میں کہا، انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتیں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہیرکل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئے گی۔ رومی چلے جائے، عرب کے مسلمان آ جائے، انہیں کیا؟ بےزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بےزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو، ہیرکل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہے۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک عورت نے کہا، گھوڑے برچہ اور تلواریں ہمیں دے دے۔ جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے، ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمیوں اور بگھوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ہیرکل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں اٹھا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہیرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے دے گا، لیکن ہیرکل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں رومی عورتیں تھی۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہیرکل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو باغ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست کو قبول نہیں کیا ہے۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہیرکل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔
मैं तुम्हें किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मुसलमानों ने जहाँ तक आना था वो आ चुके हैं, अब मेरी बारी है। वो मेरे पंदे में आ गए हैं, अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने जो लिया है उससे कई गुना ज़्यादा देंगे। मेरे लिए दुआ करती रहो, तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगी और तुम अपने खावंदों के, अपने भाइयों के, अपने बाबों के और अपने बेटों के हौसले बढ़ाती रहो। हम उन पर अपने घरों के दरवाजे बंद कर देंगे। एक औरत ने कहा, तुम उन्हें गले लगाओगे। हेरेकल ने कहा, अब वो फतह बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। औरतों ने अपने शहंशाह को रास्ता दे दिया। हेरेकल ने उन औरतों की महज दिल जोई नहीं की थी। मौरिख लिखते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम करने वाला जंगजू था ही नहीं, और वो शहंशाह बाद में और सिपाही पहले था, और वो अपने दौर का मंजा हुआ जर्नेल था। ये कहना गलत नहीं कि वो खालिद रज़ी तआला अन्हु की टक्कर का जर्नेल था, और जंगी चालों में उसकी महारत का अंदाज अपना ही था। अगर वो सिर्फ शहंशाह होता तो अपनी सवारी के रास्ते में उन औरतों की रुकावट को बर्दाश्त न करता, उन्हें सजा देता, लेकिन उसने उन औरतों से हौसला लिया और उनका हौसला बढ़ाया। उसने ये भी महसूस किया था कि किसी तरफ से शिकस्त की और उसकी फौज की पसपाई की इत्तला आती थी तो उसके हुकाम उसके सामने आने से गुरेज करते थे। ऐसा ही एक मौका था कि उसका एक सालार जो मशीर की हैसियत से उसके साथ रहता था उसके सामने आ गया। उस सालार के चेहरे पर मायूसी का जो तासुर था वो हेरेकल ने बांप लिया था। क्या है? हेरेकल ने पूछा। मरजलदैन से कासिद आया है, सालार ने कहा। तो कहते क्यों नहीं कि वो एक और पसपाई की खबर लाया है? हेरेकल ने जोशीली लहजे में कहा। अपने दिलों से मेरा खौफ निकालते क्यों नहीं? शिकस्त और पसपाई के नाम से घबराते क्यों हो? बोलो। हाँ शहंशाह, सालार ने कहा। कासिद पसपाई की खबर लाया है और वहाँ से भागे हुए सिपाही यहाँ आना शुरू हो गए हैं। आने दो उन्हें, हेरेकल ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था और उसके लहजे में शाहाना जलाल भी नहीं था। उनका हौसला बढ़ाओ, कोई उन्हें शिकस्त और पसपाई का ताना ना दे। यही सिपाही शिकस्त को फतह में बदलेंगे। सिपाहियों का हौसला तो बहाल हो जाएगा, सालार ने कहा, लेकिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। लोग मुसलमानों को जिन्नात और भूत समझने लगे हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही है जो लोगों को बुज़दिल बना रही है। जानते हो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? हेरेकल ने कहा। हमारे अपने सालार कमांडर और सिपाही, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन उनका मुकाबला जिन्नात से हो गया। शहंशाह रूम, सालार ने कहा। मुसलमानों की कामयाबी की एक और वजह भी है। हमारे जिस शहर के लोग उनसे सुलह का मुआहदा कर लेते और जजिया अदा करते हैं, उनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उनकी औरतों और उनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनकी जान व माल की हिफाजत करते हैं। उनके मज़हब का भी एहतराम करते हैं। ये खबर सारे इलाके में फैल जाती है। इसका असर ये होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फ़ौज का साथ छोड़ देते और उसे सुलह पर मजबूर कर देते हैं। इसका कोई इलाज होना चाहिए। उसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, हेरेकल ने कहा, और इसका बंदोबस्त हो रहा है। अबू लकदस में हेरेकल को जो चोट पड़ी थी उसने उसे झंझुला डाला था। उसे उस मारके की तफसीली इत्तला मिली थी। अबू उबैदा रज़ी तआला अन्हु एक गलती कर बैठे थे। रूमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो पंदे में आया, लेकिन खालिद रज़ी तआला अन्हु और ज़रार ने बरवकत पहुंचकर न सिर्फ रूमियों का पंदा तोड़ डाला था, बल्कि उन्हें नाकाबिल तलाफी जानी नुकसान भी पहुंचाकर माली गनीमत से मालामाल होकर लौटते थे। हेरेकल को मुसलमानों की बरगी रफ्तार ने परेशान कर दिया था। उसने देखा था कि मुसलमानों की फ़ौज एक से दूसरी जगह हैरान कुन तेज़ी से पहुंचती थी और मैदान जंग में सालारों की जंगी चालों पर उनके दस्ते बहुत ही तेज़ी से जगह बदलते और चालों को कामयाब करते थे। इसके बाद तो जैसे हेरेकल ने रातों को सोना भी छोड़ दिया था। उसने उसी रोज़ अपनी सल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासिद दौड़ा दिए थे। उसने हुक्म ये भेजा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फौजी दस्ते अंताकिया भेज दिए जाए। वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था, हर जगह फौज की ज़रूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमज़ोर नहीं होता था। जिस इलाके से दस्ते आए उनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हेरेकल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेज़ी से आए। जब ये आने लगे तो उनमें से बाज़ को अंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरिया उर्दन के मगरबी किनारे से ज़रा ही दूर एक मकाम बेसान पर भेज दिया गया।
ہیریکل نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بلایا۔ ان میں سکلار، شنس اور تھیوڈورس خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ان تینوں کو محاذوں سے بلایا گیا تھا۔ ہیریکل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ اس نے کہا، شکست اور پسپائیوں سے تمہیں بزدل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو، کیسر روم کی عظمت کو مسلمانوں کے قدمے میں ڈال دو اور صلیب کو بحیرہ روم میں پھینک کر مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی جانیں، اپنی بیویاں اور اپنے مال و مال زیادہ عزیز ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کے لٹیرے کا ایک گروہ تمہیں شکست پہ شکست دیتا چلا جا رہا ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہیریکل کی نگاہیں ہر ایک پر گھوم گئی۔ شہنشاہ روم، اس کے سالار تھیوڈورس نے سکوت توڑا۔ ہم پیچھے ہی نہیں ہٹتے آئیں گے۔ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے زندہ آیا تو شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ اگر میں نے شکست کھائی تو میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس ایک سالار کے بولنے سے نہ صرف سناٹا ٹوٹا بلکہ سب میں جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سب نے ہیریکل کو یقین دلایا کہ انہیں سلطنت روم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں، خروش نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم زخمی کرا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل بھی لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہیریکل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا، اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہیریکل کے کانوں میں اب تک کوئی نئی بات پڑی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا تھا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے کوئی شکست کا پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننے پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھی، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہیریکل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوج ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں کہبتہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو کہبہ خانوں کی رونق بن جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائف میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجیں آتے تھے وہ زخمی ہوتی تھی، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہیریکل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہیریکل شاہی بگی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے جا رہے تھے۔ ان کے سوار ہیریکل کے محافظ تھے۔
उन सवारों की शान निराली थी। उनके हाथों में बर्चियां थी जिनकी अन्नियां ऊपर को थी और हर बर्ची की अन्नी से जरा नीचे रेशमी कपड़े की एक एक झंडी थी। बगी के पीछे भी 8-10 घुड़सवार थे। एक शोर उठा, शहंशाह की सवारी आ रही है। लोग अपने शहंशाह को देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। उनमें औरतें भी थीं। औरतें उमूमन अपने दरवाज़ों के सामने या मंडेरों पर खड़ी होकर अपने शहंशाह को गुजरता देखा करती थी, लेकिन उस शाम चंद एक औरतें हिरकल के रास्ते में आ गई। अगले 2 सवार मुहाफिजों ने घोड़े दौड़ाए और औरतों को रास्ते से हटाने लगे, लेकिन औरतें गल मचाने लगी कि वो अपने शहंशाह से मिलना चाहती है। 2 और सवार आगे बढ़े क्योंकि औरतें पीछे नहीं हट रही थी। हिरकल की बगी उन तक पहुंच गई। वो औरतों को देख रहा था। उसने बगी रुकवा ली और उतर आया। छोड़ दो इन्हें, हिरकल ने गरज जैसी आवाज़ में कहा। उन्हें मुझ तक आने दो। वो आगे गया और औरतें ने उसे घेर लिया। वो सब बोल रही थी। मैं कुछ नहीं समझ रहा, हिरकल ने बुलंद आवाज़ से कहा। कोई एक बोलो, मैं सुनूंगा। शहंशाह रूम, एक औरत बोली। तू कुछ नहीं समझेगा। जिसने सल्तनत रूम की तबाही बर्दाश्त कर ली है वो गैरत वाली औरत की बात नहीं समझेगा। एक औरत ने कहा, हम सब रूमी है, हम मकामी नहीं। यहाँ की औरतें तेरे रास्ते में नहीं आएगी। रूमी चले जाए, अरब के मुसलमान आ जाए, उन्हें क्या? बेइज्जती तो हमारी हो रही है, बेइज्जती रूम की हो रही है। अब आगे बोलो, हिरकल ने कहा। जो कहना है वो कहो। क्या तूने फैसला कर लिया है कि तूने हमें मुसलमानों के हवाले करना है? एक औरत ने कहा। इसके सिवा और कोई बात कानों में नहीं पड़ती कि फला शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है और वहाँ की रूमी औरतें मुसलमानों की लोंडियाँ बन गई है। हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं रही तो हमें आगे जाने दे। एक औरत ने कहा। घोड़े, बर्चा और तलवारें हमें दे दे, जिस फौज से फारसी भी डरते थे। एक और बोली। वो फौज अब डरे हुए जख्मियों और भगोड़े सिपाहियों का हुजूम बन गई है। यह अब रूम का जो भी फौजी आता है किसी न किसी किले या मैदान से भागा हुआ आता है। एक और औरत ने कहा। हिरकल के मुहाफिज डर रहे थे कि शहंशाह रूम का अताब उन पर गिरेगा कि वो चंद एक औरतों को उसके रास्ते से नहीं हटा सके। तमाशाई इस इंतज़ार में थे कि हिरकल उन तमाम औरतों को घोड़ों तले कुचल देने का हुक्म दे देगा, लेकिन हिरकल खामोशी से, तहम्मुल और बर्दबारी से औरतों के ताने सुन रहा था। शायद इसलिए कि वो मकामी नहीं रूमी औरतें थी। हमारी फौज बुज़दिल साबित हुई है, हिरकल ने कहा। मैं बुज़दिल नहीं हो गया। शिकस्त खाकर जो बाग आए हैं वो फिर लड़ेंगे। मैंने शिकस्त को कबूल नहीं किया है। फिर हमारा शहंशाह क्या सोच रहा है? एक औरत ने पूछा। तुम जल्द ही सुन लोगी, हिरकल ने कहा। मैं जिंदा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। फतह और शिकस्त होती ही रहती है। वो कौम हमेशा दूसरों की गुलाम रहती है जो शिकस्त को तस्लीम कर लेती है। मैं तुम्हें किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मुसलमानों ने जहाँ तक आना था वो आ चुके हैं। अब मेरी बारी है। वो मेरे पंदे में आ गए हैं। अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने जो लिया है उससे कई गुना ज़्यादा देंगे। मेरे लिए दुआ करती रहो। तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगी और तुम अपने खावंदों के, अपने भाइयों के, अपने बाबों के और अपने बेटों के हौसले बढ़ाती रहो। हम उन पर अपने घरों के दरवाजे बंद कर देंगे। एक औरत ने कहा। तुम उन्हें गले लगाओगे, हिरकल ने कहा। अब वो फतह बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। औरतों ने अपने शहंशाह को रास्ता दे दिया। हिरकल ने उन औरतों की महज दिल जोई नहीं की थी। मौरिख लिखते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम करने वाला जंगजू था ही नहीं, और वो शहंशाह बाद में और सिपाही पहले था, और वो अपने दौर का मंजा हुआ जर्नेल था। ये कहना गलत नहीं कि वो खालिद रज़ी तआला अन्हु की टक्कर का जर्नेल था और जंगी चालों में उसकी महारत का अंदाज अपना ही था। अगर वो सिर्फ शहंशाह होता तो अपनी सवारी के रास्ते में उन औरतों की रुकावट को बर्दाश्त न करता, उन्हें सजा देता, लेकिन उसने उन औरतों से हौसला लिया और उनका हौसला बढ़ाया। उसने ये भी महसूस किया था कि किसी तरफ से शिकस्त की और उसकी फ़ौज की पसपाई की इत्तला आती थी तो उसके हुकाम उसके सामने आने से गुरेज करते थे। ऐसा ही एक मौका था कि उसका एक सालार जो मशीर की हैसियत से उसके साथ रहता था उसके सामने आ गया। उस सालार के चेहरे पर मायूसी का जो तासुर था वो हिरकल ने बांप लिया था। क्या है? हिरकल ने पूछा। मरजलदैन से कासिद आया है, सालार ने कहा। तो कहते क्यों नहीं कि वो एक और पसपाई की खबर लाया है? हिरकल ने जोशीली लहजे में कहा।
अपने दिलों से मेरा खौफ निकालते क्यों नहीं? शिकस्त और पसपाई के नाम से घबराते क्यों हो? बोलो। हाँ शहनशाह, सालार ने कहा। कासिद पसपाई की खबर लाया है और वहाँ से भागे हुए सिपाही यहाँ आना शुरू हो गए हैं। आने दो उन्हें, हेरेकल ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था और उसके लहजे में शाहाना जलाल भी नहीं था। उनका हौसला बढ़ाओ, कोई उन्हें शिकस्त और पसपाई का ताना ना दे। यही सिपाही शिकस्त को फतह में बदलेंगे। सिपाहियों का हौसला तो बहाल हो जाएगा, सालार ने कहा, लेकिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। लोग मुसलमानों को जिन्नात और भूत समझने लगे हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही है जो लोगों को बुज़दिल बना रही है। जानते हो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? हेरेकल ने कहा, हमारे अपने सालार कमांडर और सिपाही, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन उनका मुकाबला जिन्नात से हो गया। शहनशाह रूम, सालार ने कहा, मुसलमानों की कामयाबी की एक और वजह भी है। हमारे जिस शहर के लोग उनसे सुलह का मुआहदा कर लेते और जजिया अदा करते हैं, उनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उनकी औरतों और उनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनकी जान व माल की हिफाजत करते हैं। उनके मज़हब का भी एहतराम करते हैं। ये खबर सारे इलाके में फैल जाती है। इसका असर ये होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फ़ौज का साथ छोड़ देते और उसे सुलह पर मजबूर कर देते हैं। इसका कोई इलाज होना चाहिए। उसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, हेरेकल ने कहा, और इसका बंदोबस्त हो रहा है। अबू लकदस में हेरेकल को जो चोट पड़ी थी उसने उसे झंझुला डाला था। उसे उस मारके की तफसीली इतला मिली थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक गलती कर बैठे थे। रूमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो पंदे में आया, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ज़रार ने बरवकत पहुंचकर न सिर्फ रूमियों का पंदा तोड़ डाला था, बल्कि उन्हें नाकाबिल तलाफी जानी नुकसान भी पहुंचाकर माली गनीमत से मालामाल होकर लौटते थे। हेरेकल को मुसलमानों की बरगी रफ्तार ने परेशान कर दिया था। उसने देखा था कि मुसलमानों की फ़ौज एक से दूसरी जगह हैरान कुन तेज़ी से पहुंचती थी और मैदान जंग में सालारों की जंगी चालों पर उनके दस्ते बहुत ही तेज़ी से जगह बदलते और चालों को कामयाब करते थे। इसके बाद तो जैसे हेरेकल ने रातों को सोना भी छोड़ दिया था। उसने उसी रोज़ अपनी सल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासिद दौड़ा दिए थे। उसने हुक्म ये भेजा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फौजी दस्ते अंताकिया भेज दिए जाए। वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था, हर जगह फौज की ज़रूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमज़ोर नहीं होता था। जिस इलाके से दस्ते आए उनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हेरेकल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेज़ी से आए। जब ये आने लगे तो उनमें से बाज़ को अंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरिया उर्दन के मगरबी किनारे से ज़रा ही दूर एक मकाम बेसान पर भेज दिया गया। हेरेकल ने अपने मशीरों और सलारों को बुलाया। उनमें सकलार, शंस और थियोडोरस ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र थे। उन तीनों को महाजों से बुलाया गया था। हेरेकल ने उन सब को बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए उसने क्या बंदोबस्त किया है और सलारों ने क्या करना है। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं। उसने कहा, शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बुज़दिल नहीं होना चाहिए। उनसे तुम्हें तजुर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है। जाओ और मुसलमानों की अताअत कबूल कर लो। कैसर रूम की अजमत को मुसलमानों के कदमे में डाल दो और सलीब को बहरा रूम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियाँ और अपने माल व माल ज़्यादा अजीज़ है। उसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक ग्रोह तुम्हें शिकस्त पे शिकस्त देता चला जा रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हेरेकल की निगाहें हर एक पर घूम गई। शहनशाह रूम, उसके सालार थियोडोरस ने सकूत तोड़ा। हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतल्लिक कह सकता हूँ कि मैं आपके सामने जिंदा आया तो शिकस्त खा कर नहीं आऊँगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहाँ नहीं आएगी। उस एक सालार के बोलने से न सिर्फ सन्नाटा टूटा बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सब ने हेरेकल को यकीन दिलाया था उस किले पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया है। फला मैदान से भी अपनी फौज पसपा हो गई है। मुसलमान फला तरफ पेशकदमी कर गए हैं। हमारे फला शहर के लोगों ने मुसलमानों को जजिया देना कबूल कर लिया है। हेरेकल के कानों में अब तक कोई नई बात पड़ी ही नहीं थी। नींद में भी वो यही खबरें सुन रहा था।
اس کے وزیر مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے کوئی شکست کا پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننے پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی، انطاکیہ کی شام حسین ہوا کرتی تھی، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی، انطاکیہ کی شام حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہیرکل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوج ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی، اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں کہبتہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو کہبہ خانوں کی رونق بن جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائف میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجیں آتے تھے وہ زخمی ہوتی تھی، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہیرکل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہیرکل شاہی بگی پر کہیں سے